हे हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2147 बताने जा रही हूँ, जो कि है नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड अ लॉन्ग कॉरिडोर। ओके, ये हार्ड मार्क्ड है, बट ये आपको समझने के बाद हार्ड नहीं लगेगा। इट गोइंग्स टू बी मीडियम। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट along sorry एक मिनट along along a long library corridor there is a line of seats and decorative plants. Okay, you are given zero index string corridor of length n consisting of letter s and p. Okay, where s represents seat and each p represent a plants. Okay, one room divider has already been installed to the left index 0 and another right index n minus 1. Okay, तो ये कहना चाह रहा है there is a divider which is already installed at the both ends of the corridor, means in the starting of the index and in the ending of the index. Okay, now additional room dividers can be installed for each positive indices between indices I minus 1 and I. Okay, at most one divider can be installed. Okay, the question want to say is that you can install divider between these between the plants, between the corridor, sorry, between the seats and plant. Okay, means between the corridor you can also apply the also install the dividers. Okay, divide the corridor into non-overlapping sections. Okay, where each section has exactly two seats within any number of plants. Okay, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे important line है ये, and the question want that you cannot apply the dividers which are overlaps. Means if you apply the divider, look here, if you apply the divider here, then you cannot apply the divider here also. Means the divider must be separate, must be independent from each other. Okay, you can't apply the, you can't overlap. Okay, and also the main thing is that you can apply the divider in which the each divider must contain exactly two seats. Means look here, this divider contains two seats. Okay, look here, this divider, you can see this divider contains two seats. Okay, and this divider, this whole divider contains two seats. Okay, so this is the grips which question have. Okay, means this divider must contains two seats, this divider contains two seats. So here one divider here installed. Okay, and also look here, this divider contains two seats and this divider contains, sorry, this section contains two seats. Okay, so here one divider installed, here also this section contains two seats, also this section contains two seats, so one divider installed here. Okay, so now move further. Two ways are different if there is position with a room divider installed in first wave but in not in second wave. Means position different होनी चाहिए रूम्स की, ठीक है, डिवाइडर इंस्टॉल करने की, ठीक है. रिटर्न द नंबर ऑफ वेज डिवाइड द कॉरिडोर. ओके, सिंस द आंसर मे बी लास्ट, सो रिटर्न इट मॉडुलो, इफ देयर इज नो रिटर्न 0. ओके, so firstly look here, we have to understood that here, look, this is the, I take output, sorry, I take input. Okay, this is the input. Now understood, there is you have to divide the corridor such that each section contains at most नहीं, sorry, at most mean exactly two seats must contain. So हमको क्या करना पड़ेगा, exactly two seats के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे डिवाइडर को इंस्टॉल करना पड़ेगा कि वो एक्जैक्टली टू सीट कंटेन करें. अब देखिए, एक डिवाइडर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो ये देखिए, ये जो हमारा है, ये जो पार्ट है, ये सेक्शन हमारा कंटेन करता है टू
2 सीट्स। ओके, और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन भी हमारा 2 सीट्स कंटेन करता है। तो एक हमारा तो ये हो गया, ठीक है, एक हमारा डिवाइडर ये हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक डिवाइडर इंस्टॉल करूँ ईयर, सो दिस इज़ माई वन सेक्शन एंड दिस इज़ माई अनदर सेक्शन। ओके, सो 2 डिवाइडर हो गए, ठीक है। अगर मैं एक डिवाइडर यहाँ इंस्टॉल करूँ, ठीक है, तो ये मेरा एक हो गया सेक्शन, एक मेरा सेक्शन ये हो गया। सो हमारे कितने डिवाइडर हो गए अभी तक? 3, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ इंस्टॉल करूँगी तो क्या मैं कर पाऊँगी? देखिए यहाँ पर हमारे 3 है सीट्स, ओके, सॉरी 3 सीट्स हैं, हाँ। यहाँ हमारे 1 है, सो 3 and 1 नो। The question wants that exactly 2 seats must be present in the section, so we can't install here divider. Okay, but if we try here, no, you can't here also. Okay, because here you also get the here you got 3 and here you got 1. Okay, so you can't install here also. So the answer of this input is 3. Okay, you can see here. Okay, now one thing is that there is one more input, like यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, like if there is any seats, देखिए, if there is any seats, what seats have seats is in odd count. Odd count means, look here, if the seats are odd count means these seats are not even, so we can we divide into the exactly 2 sections? No. Why? You can see here, if the seats are in odd count means, देखिए, if you install divider here, can you divide? No, because this contain 1 and this contain 2. Okay, no. If you divide the section here, this contain 2 and this contain 1 seat, no, can't divide. Okay, if you install divider here, no, this also not valid. If you here, no, this is out of bound. Okay, so the question, so the main point is that if the corridor contains odd number of seats, so that you have to return 0. You cannot install the divider between the corridor. Okay, so you have to return 0. Okay, I have to write here, if corridor have odd number of seats, then return 0. No way to install divider. Okay, so you have to mark that. Okay, you have to look here. Okay, and also one thing is also you have to notice that if you have exactly 2 seats, it means you have corridor, but in starting, like I will show you one minute, like here I have shown, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा मेरा आउटपुट। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ही आपके पास सिर्फ 2 सीट्स हैं। देखिए in starting you have only 2 seats, so there is only one way to install the divider, that is this, which is also in starting. Okay, so you have to return whole corridor as it is. No divider can be installed if you have exactly 2 seats. So remember that. Okay, if you have exactly 2 seats, so return 1. Okay, now look here, this output, sorry, this input. I have take this input, so you have understand very carefully here. Then look,
you have this input. Okay, look here, what I am doing that if the sections I combine those sections which have exactly 2 seats, because those have exactly 2 seats we cannot install divider further between them. Okay, देखिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए ये है हमारा, ठीक है, सेक्शन. यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एस पी तो यस. अब देखिए और अच्छे से देखिएगा, ये हमारा एस है, इसमें सिर्फ ये हमारा सेक्शन है, ठीक है. इसमें सिर्फ ये मतलब मान लो ये हमारा कॉरिडोर है, ये हमारा सेक्शन, इसमें सिर्फ दो हमारे पास सीट्स हैं. क्या हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? वही बात जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, अभी जस्ट यहाँ पे बताई थी, ठीक है. तो हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर डिवाइड करेंगे तो 2 सीट्स रह ही नहीं जाएंगी ना, तो वो हमारा क्वेश्चन का कंडीशन नहीं वैलिड हो पाएगा. तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वो सेक्शंस को कंबाइंड कर लिया है, ठीक है. दोज हैव एग्जैक्टली 2 सीट्स, जो सिर्फ 2 सीट्स के बिना रह ही नहीं सकते हैं. देखिए एक तो हमारा सेक्शन ये मैंने कर लिया, अनदर सेक्शन इज दैट, ठीक है, अनदर सेक्शन इज दिस, ठीक है, अनदर सेक्शन इज दिस. ओके, सो मैंने इनको एक डब्बे में बंद कर लिया, इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और फिर मैंने क्या लिखा, कांट अप्लाई डिवाइडर बिटवीन these sections because they already contains exactly 2 seats, which is requirement. Okay, we cannot go beyond this. Okay, so हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है. अब देखिए आगे हमें क्या करना है. अब देखिए जो प्लांट्स, अब हमें ये चेक करना है, अब हमको इसको डिवाइड किसके बेसिस पे करेंगे. हमने ये तो ग्रुप ही कर दिए, तो हमें डिवाइड किसके बेसिस पे करना है, जो हमारे सेक्शन बच रहेंगे, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाले सेक्शन. तो हमारे कौन से सेक्शन बच जाएंगे, जो सिर्फ प्लांट्स कंटेन करते हैं, क्योंकि हमने वो सेक्शन तो बना ही दिए जो जिसमें सीट्स हैं, क्योंकि हमें दो के हमने सेक्शन बना दिए जो सीट्स कंटेन करते हैं, ठीक है. और हमारे बच गए हैं सिर्फ प्लांट्स वाले सेक्शन. तो हमें क्या करना है, मेनली इनको डिवाइड करना है, इनमें डिवाइडर इंस्टॉल करना है, ठीक है. अब देखिए अगर मैंने एक डिवाइडर यहाँ इंस्टॉल किया, यहाँ इस पोजीशन पे, तो हमारा देखिए क्या हमारा एक बन जाएगा, एक हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये कंटेन करेगा, ठीक है, एक हमारा ये कंटेन करेगा, ठीक है, सेक्शन, और एक यहाँ पर भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो एक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है. तो एक तो हमारा ये हो गया तरीका, ठीक है. मैं इसको आपको पूरा करके दिखाती हूँ, 1 मिनट. लगाती हूँ, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर इसमें से इसको हटाओ, ठीक है. अब यहाँ पर अभी मैंने एक यहाँ पे डिवाइडर इंस्टॉल किया था, ठीक है. अब मैं एक डिवाइडर यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँ, अगर एक डिवाइडर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, तो एक हमारा बन जाएगा, ठीक है. अगर मैं एक डिवाइडर यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँ तो हमारा एक सेक्शन यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. इस सेक्शन को तो मैं बाद में डिवाइड करूँगी ना, ये अलग ही इंडिपेंडेंट सेक्शन बन जाएगा. अगर मैं यहाँ पे एक डिवाइडर इंस्टॉल कर दूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिवाइडर इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, या फिर एक डिवाइडर मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँ, या फिर एक डिवाइडर मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँ, तो ये एक अलग ही इंडिपेंडेंट केस हो जाएगा, ठीक है. सो या एक डिवाइडर मैंने यहाँ इंस्टॉल किया, फिर एक डिवाइडर मैंने यहाँ इंस्टॉल किया, या फिर मैं यहाँ ना करके एक डिवाइडर मैं यहाँ इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ ना डिवाइड करते एक डिवाइडर मैं यहाँ इंस्टॉल कर दूँ. अगर मैं इसको फिक्स्ड रखूँ तो क्या हो जाएगा, एक डिवाइडर मैंने यहाँ इंस्टॉल किया, ठीक है, अगर मैं इसको फिक्स्ड रखूँ तो एक डिवाइडर मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक डिवाइडर मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक डिवाइडर मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है. तो कितने डिवाइडर हुए, ये 2 लेंथ है ना, प्लांट्स कितनी लेंथ है, 2 लेंथ है, तो कितने डिवाइडर हुए हमारे 3. ओके, 2 + 1 दैट इज़ 3 नंबर ऑफ लेंथ ऑफ प्लांट्स, ओके, बिटवीन दिस सेक्शन, ओके, दैट इज़ 2 and +1. तो हमें क्या करना है, प्लांट्स हमारे कितने, नंबर ऑफ प्लांट्स
काउंट ऑफ प्लांट्स, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, काउंट ऑफ प्लांट्स +1, इतने हमारे पास क्या हुआ जाके, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड द कॉरिडोर। ओके, तो ये हमारे इतने बने जाके, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने इसको फिक्स रखा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ फिक्स रखा था, तो ये हमारे पास काउंट ऑफ प्लांट्स की यहाँ पे कितने हैं, 2, यानी कितने बने हमारे, 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ, 3, तो ये एक हमारे 3 ये होगा, ठीक है। अगर सिर्फ मैंने इसको फिक्स रखा और यहाँ पर मैंने ट्राई किया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस वाले सेक्शन को फिक्स रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर अब मैं इस वाले यहाँ पे फिक्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया तो 1 बन गया, ठीक है, देख ली जाइएगा। अगर मैंने यहाँ इंस्टॉल किया तो 1 बन गया, एक और बन गया, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया तो हमारे 2, ये तीसरा और आ गया, तो हमारे 3 फिर से बन गए। यहाँ पे बनाया तो हमें 3 बन गया, तो कितने बने, उतने बने, ठीक है, 3, तो यहाँ से 3 आ गए, ठीक है, 3 यहाँ से आ गए। अब मेरा आगे वाला देखिए, यहाँ पे आगे वाला देखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं फिर से चेंज करती हूँ, फिर से मैं डिवाइडर को चेंज करती हूँ। अब मैं डिवाइडर यहाँ मैंने कर दिया था, अब मैं यहाँ करूँगी, ठीक है, अब मैं यहाँ इंस्टॉल करूँगी, यहाँ मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने किया 1 हो गया, ठीक है, अगर इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है, यहाँ मैंने किया 2 हो गए, ठीक है, यहाँ मैंने किया 3 हो गए, तो कितने हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 3 3 9 पूरे यहाँ पर सेक्शन डिवाइडर इंस्टॉल हो गए। तो यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि ये दोनों ये इंडिपेंडेंट केसेस हैं। अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो इसके अलग काउंट होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अब यहाँ पर कितने डिवाइडर हुए बने, यहाँ पर मैंने 1 किया, फिर मैंने 1 यहाँ पर किया, फिर मैंने 1 यहाँ पर किया, मतलब यहाँ पर किया, फिर इसके बीच में किया, ठीक है, फिर इसके बीच में किया, तो कितने हुए, 3 हुए। यहाँ पर भी वही है, काउंट ऑफ प्लांट्स +1 यानी 3, सो 3 ये हुए, और यहाँ पर कितने बने थे, 3, तो 3 × 3 यानी इंडिपेंडेंट केसेस है ना ये, तो 3 × 3 करेंगे, ठीक है, कितने करेंगे, 3 × 3 यानी 9। ओके, तो ये हमारे 9 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, दो कंटेंट किए हैं, ठीक है। फिर हमें बीच में नंबर ऑफ प्लांट्स काउंट करने पड़ेंगे, फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या करें उससे अच्छा हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, आप ये देखिए, इसके इंडेक्सेस लिखिए, इसके इंडेक्स एक बार लिख के देखिए क्या है, ठीक है। मैं इसके इंडेक्स लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख रखी है इंडेक्सेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इंडेक्सेस पहले से लिख रखी है, सो दैट टाइम ना मेरा ख़राब हो, आपका भी ना ख़राब हो, ठीक है, ये लिख रखी है मैंने। अब देखिए फर्स्ट ईयर्स की ये लिखी है, ठीक है। हर इंडेक्स की मैंने हर सीट्स की इंडेक्स लिख ली है, ओके। हर इंडेक्सेस की मैंने हर सीट्स की मैंने इंडेक्स लिख ली हैं। सीट 1 की ये रहा, सीट 2 की ये रही, सीट 3 की ये रही, 5th पे, ठीक है। सारे इंडेक्स की मैंने सारे सीट्स की मैंने इंडेक्स लिख ली है, ठीक है। अब चेक कीजिए, एक सीट्स यहाँ है, ठीक है, एक सीट यहाँ। अब आप देखिएगा, ठीक है, ये जो एक फर्स्ट हमारा ग्रुप है, सेक्शन है, और ये जो सेकंड सेक्शन है, यानी जो प्रीवियस सेक्शन और सेकंड सेक्शन। लेट सपोज हम लोग करेंटली यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा कॉरिडोर काउंट कितना हो जाएगा, डिवाइडर कितने इंस्टॉल होंगे, ठीक है। ये जो अभी करेंट सेक्शन है उसकी स्टार्टिंग सीट की इंडेक्स 5 है, ठीक है। और जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था उसकी एंडिंग सीट की इंडेक्स क्या थी, 2, तो 5 - 2 कितना हुआ हमारे पास, 3। और हमारे सेक्शन यहाँ पे कितने निकले थे, 3, यानी बन गया ना 3, है ना, क्या बना, 3। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा जो करेंट स्टार्ट इंडेक्स निकालनी है हमको, और प्रीवियस एंड इंडेक्स, ये हमें करना है बस। करेंट स्टार्ट इंडेक्स एंड प्रीवियस
प्रीवियस स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, तो आप अच्छे समझ जाएंगे। अभी मेरी स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कौन से करेंट स्टार्ट इंडेक्स से। अब मैं करेंट स्टार्ट इंडेक्स यहाँ लूँगी, प्रीवियस स्टार्ट इंडेक्स मैं यहाँ लूँगी। क्यों यहाँ लूँगी? यहाँ लेके क्या फ़ायदा होगा? यहाँ थोड़ा ना कोई सेक्शन बन रहा है, यहाँ पीछे कोई सेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है, हमें इन्हीं दोनों के बीच में बनाना है ना, तो इसीलिए ये मैंने सारी इंडेक्स स्टोर कर दी है। ठीक है, ये क्या है? ये है इंडेक्स। ऐसे लिखेंगे तो रात हो जाएगी मुझे, लिखते लिखते यहाँ लिखती हूँ इंडेक्स ऑफ दी सीट्स। ठीक है, और इंडेक्स क्यों मैंने स्टोर किया? इंडेक्स स्टोर करके मुझे बगल बगल वाली सीट्स पास में मिल गई। मतलब मुझे इंडेक्स बार बार मुझे काउंट नहीं करना पड़ेगा प्लांट्स को। मुझे क्या करना, मुझे दो गैप छोड़ के मुझे एक सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो गैप का ही तो मैंने सेक्शन बनाया है। ठीक है, अब देखिए करंट स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी क्या है, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, दैट इज़ 2 पर, और ये हमारी 1 पे है। ठीक है, और प्रीवियस इंडेक्स हमारी 1 है। अब हम क्या करेंगे, सीट वाले, ये सीट इंडेक्स वाले, ये क्या है हमारा सीट इंडेक्स, सीट। एक तो ये मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सीट इंडेक्स। ठीक है, ये हमारी होगी सीट इंडेक्स का एरे। ओके, एक लिस्ट बना लेंगे हम लोग सीट इंडेक्स नाम की। ठीक है, बना ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी करंट स्टार्ट इंडेक्स हमारी 2 पर है और प्रीवियस एंड इंडेक्स हमारी 1 पे है। ऐसे ही लेना है हमको। ठीक है, क्योंकि एक हमारा सेक्शन ये है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये, इन्हीं को तो दोनों से हमें बीच में वो निकालनी है। एक हमारा सेक्शन ये है, देखिए स्टार्टिंग 5th पे, एंडिंग 8th पे, स्टार्टिंग की 0 पे, एंडिंग हमारी 8th पे है। तो हमारा प्रीवियस एंड स्टार्ट लेना है और करंट स्टार्ट इंडेक्स लेना है। अब इन दोनों के इसमें हमें चेक करना है करंट स्टार्ट इंडेक्स पे कितनी सीट है। इंडेक्स क्या है सीट का? 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है इंडेक्स सीट का? इंडेक्स हमारी सीट का क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, अभी हमारा करेंटली इंडेक्स क्या है सीट का? 5 करंट वाले का, और प्रीवियस वाले का सीट का इंडेक्स क्या है? 2। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 3। स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, स्टोर करते चलेंगे। एक हमारा यहाँ से ये आएगा और एक हमारा यहाँ से ये आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, करंट इंडेक्स को +2 से आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? +2 से आएंगे, तो ये यहाँ पर जाएगा। कहाँ से? यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा करंट इंडेक्स 2। ठीक है, यहाँ ना होके अब ये करंट इंडेक्स 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको कितना मार्क कर देंगे? 2 + 2 कितना हुआ? 4। ये 4 पे जाएगा, देखिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 0 है, ये मैं मार्क कर देती हूँ ना, तो सो दैट सही से दिख जाएगा। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर सही दिखेगा। ठीक है, अब देखिए अभी करंट इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी 4th पे आएगी और 1 हमारा +2, ये 1 से भी बढ़ेगा 2 आगे, तो हमारा प्रीवियस एंड इंडेक्स हमारा कहाँ आएगा? यहाँ हम आएंगे, यहाँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ, सही से दिख जाएगा। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, अब हम कहाँ पे आ गए? सॉरी, अब मैं करंट इंडेक्स मेरी यहाँ पे है। ठीक है, अब प्रीवियस इंडेक्स मेरी यहाँ पे है, दोनों बगल ही बगल में होंगे ना। हाँ सॉरी, प्रीवियस इंडेक्स हमारी +2 से बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 3। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स 4 पे हमारा कितना है? 11, तो यहाँ पे आएगा हमारा 11। और करंट इंडेक्स 4 पे हमारा 11 है, प्रीवियस इंडेक्स 3 पे हमारा कितना है? 8 है, तो हमारे यहाँ पे आएगा 8।
तो यहाँ से भी हमारा कितना जाएगा, 11 माइनस 8 इज़ 3। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की बोथ सेक्शंस, बोथ इंस्टॉल्ड डिवाइडर आर डिफरेंट, मतलब इंडिपेंडेंट। तो 3, ये 1 मिनट, यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर 3 इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा 9। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, करंट स्टार्ट इंडेक्स को फिर से +2 करेंगे। अब हम आगे +2 करते जाएंगे तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और हमको यहाँ पे रुक जाना है। ये जाएगा 6, ये जाएगा 5, क्योंकि अब हमारे कोई आगे वही नहीं है, कोई सेक्शन ही नहीं है ना, रुक जाएंगे ना। क्योंकि देखिए एक सेक्शन हमारा यहाँ पे था, एक सेक्शन ये हमारा ये याद था, एक सेक्शन हमारा ये था, दूसरा सेक्शन हमारा ये था, ठीक है, तीसरा सेक्शन। तो हमें क्या करना था, सेक्शन की स्टार्टिंग की इंडेक्स देखनी थी, सेक्शन की स्टार्टिंग की इंडेक्स देखनी थी, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स देखनी थी। वहीं से हमारा क्या निकल जाएगा, वहीं से हमारा काउंट ऑफ प्लांट निकल रहा था, क्योंकि काउंट ऑफ प्लांट्स में क्या कर रहे थे, काउंट ऑफ प्लांट्स +1 ही कर रहे थे। और हमने इंडेक्स एक पीछे वाली ले ली, प्लांट्स की दोनों के पीछे वाली ले ली, इसके पीछे वाली लास्ट की, इसके आगे वाली। तो हमें क्या नहीं मिल, वही काउंट मिल गया। तो वही हमने किया, हमने स्टोर कर लिया इंडेक्सेस, क्योंकि हमें 2 चाहिए थे ना, 2 एग्जैक्टली सीट्स चाहिए थी पर हर एक सेक्शन में। तो हमने 2 के गैप के बाद छोड़ के हमने एक करंट स्टार्ट इंडेक्स ले लिया, प्रीवियस एंड इंडेक्स ले लिया, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ करना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. This question is very beautiful question. Okay, so I'm going to start coding part. So this is the code which I written already. Okay, you can see that. Firstly I have take corridor length. Okay, काउंट मैंने स्टोर कर लिया, मॉड्यूल स्टोर कर लिया, सीट्स का काउंट स्टोर कर लिया. फर्स्टली चेक दैट इफ सीट्स काउंट इज 0 और सीट्स काउंट is odd, so return 0. ठीक है. If seats count is 2, already 2 seats contains, so return 0. Okay. And store index of seats, जो कि मैंने यहाँ पे बताया क्यों स्टोर किया इंडेक्स, क्योंकि इससे नंबर ऑफ प्लांट ऑफ काउंट बिटवीन 2 सेक्शन हमें अच्छे से निकल जाएंगे. ठीक है, तो हमने निकाल लिए. ठीक है, सीट्स को स्टोर कर लिए, सीट इंडेक्स को. ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया, प्रीवियस इंडेक्स करंट इंडेक्स को मार्क कर लिया. अगर करंट इंडेक्स हमारी करंट इंडेक्स क्या होनी चाहिए, लेस देन सीट्स होनी चाहिए. ठीक है, लेस देन सीट्स होगी हमारी करंट इंडेक्स. अभी तो लेस देन सीट्स मतलब काउंट ऑफ सीट्स, उसी का तो काउंट ऑफ सीट्स का ही तो हमने एरे बनाया. देखना, काउंट ऑफ सीट्स का ही तो एरे है. ठीक है, काउंट ऑफ सीट्स का ही तो एरे है, देखिए. ठीक है, इसीलिए सीट्स लेस देन. ठीक है, हम क्या करेंगे, काउंट मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी हमारा माइनस करके करंट स्टार्ट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय मॉडुलो, सॉरी मॉड विद मॉडुलो ले लेंगे, मॉडुलो विथ m. ठीक है, और प्रीवियस एंड इंडेक्स को +2 करते रहेंगे, करंट स्टार्ट इंडेक्स को +2 करते रहेंगे और रिटर्न कर देंगे. ये मैंने इंट में इसलिए कन्वर्ट किया कि मैंने काउंट लॉन्ग में लिया था. ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ. ओके, आई होप ओके रन करके मैं इसलिए वेरिएबल टेस्ट केसेस लेती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकूँ कि कहाँ मेरा कोड फंस रहा है, इसलिए मैं ले लेती हूँ काफ़ी टेस्ट केसेस. ओके, सबमिट करती हूँ. ओके, सबमिटेड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ओके, थैंक यू.